Chapter 13, The Solar System, Explanation, page number 150 to 152 and textual exercises. Next topic is movements of the earth. Earth has two types of movements. First one is rotation and second one is revolution. Now we will discuss about rotation. Rotation means spinning movement of the earth on its axis is called rotation. We already know that earth rotates on its own axis. The earth's axis is an imaginary line running through the center of the earth from the north pole to the south pole. रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस. अब अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पर घूमती है. लुक एट दिस. अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल में रन करती है. दिस एक्सिस is tilted at an angle of 23.5 degree. Look at this picture. It is called axis, or what do you mean by axis? It is an imaginary line that running through the center of the earth from the north pole to south pole. स्पेस में आप जब अर्थ को देखोगे तो आपको कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं दिखेगी. ओके, ये जस्ट हमने इमेजिन किया है. It is an imaginary line that run from north pole to south pole. और this axis is tilted. Tilted का मीनिंग होता है बेंड होना, झुकना. अर्थ आपकी सन की तरफ बेंड होती है. कौन से एंगल पर बेंड होती है, टिल्ट होती है? 23.5 डिग्री. This axis is tilted at an angle of 23.5 degree. Now, next topic is rotation causes day and night. Rotation of the earth on its axis causes day and night. रोटेशन के कारण क्या हो रहा है? डे एंड नाइट होता है. अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लग जाते हैं और दस वन डे इज 24 आवर्स लॉन्ग. और वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24. When the earth rotate on its tilted axis, one half of the earth faces the sun and so it is daytime in all the countries in this half. अर्थ का जो फेस सन की तरफ होगा वहां पर क्या होगा? डे होगा. अर्थ का हाफ पार्ट सन की तरफ होता है, वो डायरेक्ट सन रेज गेन करता है और उस पार्ट में क्या होगा? डे होगा. एंड अदर साइड दैट डज नॉट फेसेस द सनलाइट देन इट हैज नाइट. जो पार्ट सन की लाइट को गेन कर रहा है वहां पर डे होता है और दूसरा पार्ट जो है अदर हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट फेस द सनलाइट देन इट हैज नाइट. At the same time, the countries on the other half of the earth which are away from the sun are in darkness and so have night time. That is the reason why it is night time in America and when it is day time here in India. इंडिया में जब डे होता है तो अमेरिका में क्या होता है? रात होती है. और जब इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में क्या होगा? डे. Students, give the answer. How rotation causes day and night? Yes. When the earth rotates on its axis, one half of the earth faces the sun, so it is day in all the parts in this half. At the same time, in the other half, which is away from the sun, not get the sunlight, it is night in all the parts. And this also explains why it is day in America when it is night in India. Clear? अर्थ जब रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, अर्थ का हाफ पार्ट जो है सन को फेस करता है तो वहां पर डे होता है और अर्थ का हाफ पार्ट
अदर पार्ट डू नॉट गेट द सनलाइट, उसको सनलाइट नहीं मिलती है, तो दैट पार्ट हैज नाइट. क्लियर? रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. Next topic is revolution. Revolution means movement of earth around the sun is called revolution. अर्थ जब सन के चारों ओर मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ टेक्स अबाउट 365 and a quarter days or approximately 1 year. Earth takes 365 days and 6 hours. Yeah, 1 year to complete one revolution around the sun. This is called the time period of the revolution of Earth. Earth को one revolution complete करने के लिए approximate 1 year लग जाता है. Clear? Revolution causes change in season. सीजन में जो चेंजेस आ रही हैं, विंटर आ रहा है, समर आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, मॉनसून आ रहा है, वो किसके कारण? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सीजन्स अकर ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेड पोजीशन ऑफ अर्थ while revolving. Students, what do you mean by equator? Equator is another imaginary line around the earth. Okay, equator is another imaginary line around the earth. Look at this picture. Equator divides the earth into two equal halves called the northern hemisphere and the southern hemisphere. जो पार्ट इक्वेटर से ऊपर होता है उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो पार्ट इक्वेटर के नीचे होता है, बिलो होता है, उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर होता है और एग्जाम्पल के लिए हम ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पर होता है. क्लियर? Revolution of the earth around the sun causes seasons. However, there would be no season if the earth was not tilted on its axis. अगर अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर टिल्ट नहीं करती तो क्या होता? सीजन में कोई भी चेंजेस नहीं होती, मीन सीजन ही नहीं होते. As the earth moves around the sun, the tilt causes the sun rays to fall more directly on either the northern hemisphere or the southern hemisphere depending on the position of the earth. अर्थ के बेंड होने के कारण मीन्स टिल्ट होने के कारण ही क्या हो रहा है? सीजन में चेंजेस आ रहे हैं. जो हेमिस्फीयर डायरेक्ट सन रेज गेन करता है तो वहाँ पर समर सीजन होगा. जो हेमिस्फीयर स्लांटिंग मीन्स सन से दूर होता है, सन की रेज कम पड़ती हैं, वहां पर विंटर सीजन होता है. द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन हैज समर वेयर एज द other half has winter. About 6 months later, the situation changes and the half that had summer now has winter and the half that had winter now has summer. जैसे ही अर्थ रिवॉल्व करता है 6 मंथ के बाद क्या होता है? सीजन में चेंजेस आती हैं. जिस हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो वहाँ पर विंटर सीजन आ जाता है और जहाँ पर विंटर होता है वहाँ पर समर सीजन. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. India is in the northern hemisphere whereas Australia is in the southern hemisphere. This is why when it is winter in India, Australia has summer. इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर होता है और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर पर. इन इंडिया we have 5 seasons: summer, monsoon, autumn, winter and spring. Winter is the coldest season and summer is the hottest season. Autumn season is neither very hot nor very cold. Monsoon is the season with heavy rainfall.
स्प्रिंग इज़ द मोस्ट कलरफुल ट्यून ऑफ द ईयर। स्प्रिंग सीजन में आपको गार्डन में फूल ब्लूम करते हुए नजर आएंगे। मीन्स सब जगह फ्लावर्स ही होते हैं स्प्रिंग सीजन में। स्टूडेंट्स, क्लियर हाउ रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन and tilt of the earth on its axis causes change in a season. Read this chapter from textbook and see this video. Now we will discuss textual exercises on page number 149. First question is filling the blanks with the correct words. First one is filling the blanks. यूरेनस या प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। तो करेक्ट आंसर इज प्लूटो। प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। सेकेंड वन इज द मून शाइन्स बिकॉज इट फिलिंग द ब्लैंक्स एब्जॉर्ब्स या रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्ट्स। मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेता है। सन की जब लाइट उसके सरफेस पर गिरती है तो वो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के कारण ही हमें मून जो है शाइन करते हुए चमकता हुआ नजर आता है। तो करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्ट्स। थर्ड वन इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिलेशन इज कॉल्ड ए फिलिंग द ब्लैंक्स गैलेक्सी या सोलर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज गैलेक्सी। गैलेक्सी का मीनिंग होता है लॉट्स ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड हॉट गैसेस मेक अप गैलेक्सी। गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं जिसको हम कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स स्कॉर्पियन या प्राण इज ए नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन। तो करेक्ट आंसर इज स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन इज ए नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन। Now we will discuss book exercise on page number 153. First question is choose the correct option. First one is the number of planets in our solar system. Correct option is B, 8. There are 8 planets in our solar system. Second one is the biggest planet of the solar system is, correct option is B, Jupiter. Jupiter is the biggest planet of the solar system. Third one is these causes day and night. Correct answer is A, rotation of the earth. Rotation of the earth causes day and night. Rotation के कारण ही क्या होता है? Day and night होता है। अर्थ का हाफ पार्ट सन की तरफ होता है। जो हाफ पार्ट सन की तरफ होता है उसमें डे होता है। जो पार्ट सन की तरफ नहीं होता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं गिरती है, वहाँ पर क्या होता है? नाइट होती है। तो रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट होता है। और अर्थ को 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 डे लग जाता है और 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। नेक्स्ट वन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार इज ए कॉन्स्टिलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉन्स्टिलेशन। What is the average temperature on the surface of the moon at night? तो correct option is D, -173 डिग्री सेल्सियस। नाइट टाइम में मून में बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है। लो मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और दोपहर में बहुत ही ज़्यादा हाई मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। सिक्स्थ वन इज व्हाट आर स्टार्स मेड अप ऑफ? स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट। करेक्ट ऑप्शन इज ए, गैसेस। नेक्स्ट वन इज ए प्लैनेट विद रिंग्स। Correct option is B, Saturn. Saturn. Saturn is a planet with rings, and these rings are made of dust and rocks and ice particles. Next one is planets that form a stripped pattern by pulling clouds around it. Stripped pattern. The correct option is A, Jupiter. Now we will discuss match the following. तो first one is Mercury. The correct answer is E, smallest planet. Mercury is the smallest planet in the solar system. Second one is Mars.
करेक्ट ऑप्शन इज सी, रेड प्लैनेट। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। थर्ड वन इज वीनस, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड का डी, हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज आल्सो कॉल्ड हॉटेस्ट प्लैनेट। फोर्थ वन इज सैटर्न, SATURN। सैटर्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्लैनेट विद रिंग्स। फिफ्थ वन इज यूरेनस। यूरेनस इज ए आउटर प्लैनेट। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? बी, आउटर प्लैनेट। नाउ वी विल डिस्कस, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज द ब्लू प्लैनेट इज, गिव द आंसर, अर्थ। Second one is the heavenly body that moves around a planet, satellite, SATELLITE, satellite. There are two types of satellite, natural satellite and artificial satellite. Natural satellite is a moon. Moon is a natural satellite, and artificial satellite gives the information about weather, planets, stars, etc. Next one is द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। स्पिनिंग का मीनिंग होता है घूमना। अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पर क्या करती है? घूमती रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। नेक्स्ट वन इज ए कॉन्स्टिलेशन दैट लुक्स लाइक ए हंटर। करेक्ट आंसर इज ओरियन। ओरियन, ओरियन को हम द हंटर भी कहते हैं। बहुत सारे स्टार्स मिलकर हंटर की शेप बनाते हैं, जिसका नाम हम इसको क्या देते हैं? द हंटर। नेक्स्ट वन इज रेनी सीजन इन इंडिया, मॉनसून, MONSOON, मॉनसून। नाउ वी विल डिस्कस, गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज dwarf planets. What do you mean by dwarf planets? Dwarf planets are very very small and they are not included in the category of planets. तो आंसर इज प्लूटो, PLUTO, एंड सीरीज, CERIS, सीरीज। सेकेंड वन इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म ए ब्यूटिफुल पैटर्न इन द स्काई। आंसर उर्सा मेजर, एंड सेकेंड वन इज ओरियन। फर्स्ट वन इज उर्सा मेजर एंड सेकेंड वन इज ओरियन। थर्ड वन इज आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स आर Jupiter and Saturn. Fourth one is movement of the earth. Earth show two types of movement. First one is rotation and second one is revolution, ROTATION. Rotation causes day and night, and second one is revolution, REVOLUTION. Revolution causes change in a season. Fifth one is imaginary lines of the earth. First one is axis, 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 and second one is equator, EQUATOR, equator. Axis, it is an imaginary line that run from north pole to south pole, and equator, it is also an imaginary line that run in the middle of the earth and that divides the earth into two equal halves, means northern hemisphere and southern hemisphere. Now we will discuss short question answer. First question is, what is solar system? Student, tell me, what do you mean by solar system? The sun, the 8 planets, their moons, and the dwarf planets form the solar system. Dwarf planet means these planets are very very small, and these planets are not included in the category of planets. बहुत ही छोटे होने के कारण ड्वार्फ प्लैनेट्स को हम 8 प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? द सन, द 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड द ड्वार्फ प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल प्लूटो, प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, प्लूटो जो था 9th प्लैनेट था, बट अब प्लूटो को 8 प्लैनेट्स की कैटेगरी में ऐड नहीं किया जाता है, बिकॉज साइज ऑफ द प्लूटो इज वेरी वेरी स्मॉल एंड प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू स्टार्स अपीयर सो स्मॉल? हमें स्टार छोटे क्यों दिखाई देते हैं?
बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स जो हैं अर्थ से बहुत ही दूर हैं, मीन्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए ब्यूटीफुल पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। बहुत सारे स्टार्स इकट्ठा होकर एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हैं स्काई में, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ओरियन एंड उर्सा मेजर। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सिस ऑफ द अर्थ? आंसर, an imaginary line running through the center of the earth from the north pole to south pole at an angle of 23.5 degree is called an axis। अर्थ को जब आप स्पेस में देखोगे तो आपको कोई भी एक्सिस वाली लाइन नज़र नहीं आएगी। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन है ये, और ये रन कहाँ से कर रही है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और हमारा जो अर्थ है कौन से एंगल पे टिल्ट होता है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट वन इज नेम द सीजन्स प्रेजेंट इन इंडिया। द 5 सीजन्स इन इंडिया आर समर, मॉनसून जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। Now we will discuss long question answer. First one is describe the features of the earth. Features means qualities. आपको अर्थ के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटीज बतानी है। तो फर्स्ट वन है अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड वन, it is also called blue planet because almost 70% of its surface is covered with water. Third is it appears blue when seen from the space. Next one is explain why we cannot live on the moon. Answer, moon does not have an atmosphere to protect it from extreme heat or cold. अर्थ में एटमॉस्फेयर होने के कारण ही हम एक्सट्रीम हीट से और कोल्ड से बच रहे हैं, बट मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो एयर भी नहीं होगा। सो द टेम्परेचर ऑन द मून कैन बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस at noon and as low as -173 degree Celsius at night. Therefore, it is impossible for us to live on the moon. नून का मीनिंग होता है दोपहर। दोपहर में जो है मून पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी। और रात को टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और कम होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट लिव ऑन मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ रेवोल्यूशन कॉज चेंज इन सीजन? आंसर, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉज द चेंज इन सीजन। द हेमिस्फीयर दैट रिसीव direct rays has summer with hotter days. The hemisphere that receive only slanting rays has winter with colder days. As the earth revolves around the sun, the season in two hemisphere get reversed. सीजन में चेंजेस किसके कारण आती हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस के कारण। हेमिस्फीयर, इक्वेटर जो है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अपर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बिलो द इक्वेटर साउथर्न हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर दैट रिसीव डायरेक्ट रेज हैज समर। जिस हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं वहाँ पर समर सीजन होता है, और समर सीजन में डेज कैसे होते हैं? हॉटर। एंड अदर हेमिस्फीयर रिसीव स्लांटिंग रेज। स्लांटिंग रेज मीन्स तिरछी पड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं लाइट, जिसके कारण वहाँ पर विंटर सीजन होता है, और विंटर सीजन में डेज कैसे होते हैं? कोल्डर डेज। एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन,
जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती रहती है सन के चारों ओर, द सीजन इन टू हेमिस्फीयर गेट रिवर्स्ड। मीन्स जिस हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा वहाँ पर विंटर हो जाएगा, और जिसमें विंटर होगा उसमें समर सीजन हो जाएगा। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सीजन इन टू हेमिस्फीयर गेट रिवर्स्ड। Student, write short and long question answer in Fear Not book. Thank you.